میں ایک دفعہ پھر آپ کو ڈی جی پی آر میں خوش آمدید کہتی ہوں، چونکہ کل 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پوری قوم وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت نہتے مقبوضہ وادی میں 505 دن سے قید کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یک زبان ہو کر ہم آواز ہو کر پوری قوم 5 فروری کو دنیا کو یہ پیغام دینے جا رہی ہے کہ جو مقبوضہ وادی کے اندر جموں کشمیر کے اندر جس طرح سے مودی نے ہندوتوا کے ذریعے پوری کی پوری وادی کو جیل میں تبدیل کر دیا، جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی کی اور جس طرح تمام انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک انسانی بحران برپا کر دیا اور پورے کی پوری وادی کے اندر جس انداز سے ٹارگٹ کلنگ جاری ہیں، میں میڈیا کو وہ اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں بے جا حراست، ماورائے عدالت قتل، تشدد اور خواتین کی عصمت دری کا جو سلسلہ ہے وہ کئی دہائیوں سے جاری ہے اور 1989 سے اب تک 95,741 سے زائد بے گناہ کشمیری قتل کیے جا چکے ہیں، 7,163 لوگوں کو دوران حراست موت کے گھاٹ اتارا گیا، 22,924 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، 1,07,813 بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ بھارتی درندوں کے ہاتھوں خواتین کی عصمت دری عام ہے، کم از کم 11,234 کشمیری خواتین اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ رپورٹ نہ کیے گئے جنسی تشدد کے واقعات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ مقبوضہ وادی میں ہزاروں بے نام اجتماعی قبروں کی دریافت پر دنیا میں تشویش کی لہر ہے۔ آسٹریلوی صحافی سی جے ورلرمین پچھلے سال 6,000 سے زائد بے نامی اجتماعی قبروں کو منظر عام پر لا چکا ہے۔ جینوسائیڈ واچ پہلے ہی دنیا کو مقبوضہ کشمیر کی نسل کشی کی مہم سے خبردار کر چکی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی حالیہ رپورٹ میں بھی بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کی جا چکی ہے۔ 26 جولائی 2016 کو مقبول کشمیری لیڈر برہان الدین وانی کے قتل کے بعد بھارت کے اندر جو ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ پہلے جاری تھا اس میں بھرپور اضافہ ہوا۔ 10,280 کشمیریوں کو بیلٹ گنوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ سینکڑوں کشمیری جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئے۔ بھارت ان کی آنکھیں چھین کر بھی ان کی آنکھوں میں کشمیر کی آزادی کا جو خواب ہے اس کو ختم نہیں کر سکا اور نہ وہ ان خوابوں کو چھین سکا۔ کشمیریوں کے بھارت سے آزادی کا جذبہ اور جنون دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آج حکومت پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے جو پنجاب کے اندر
یوم یکجہتی کشمیر منانے کی حکمت عملی طے کی گئی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کل جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں وہ اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ خصوصی شرکت کریں گے، اور تمام ہماری سول، پولیٹیکل اور سماجی لیڈرشپ جو ہے وہ میڈیا سمیت اس تقریب کا حصہ بنے گی۔ کرونا کی وجہ سے ریلیاں اور جلوس جو ہیں ان کو محدود کیا گیا ہے، اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جہاں نہ صرف تقریری مقابلے بلکہ مشاعرے اور نغمے جو کشمیر کی آزادی کے ساتھ جڑے ہیں وہ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ان کا نہ صرف اہتمام کیا جائے بلکہ ہر ضلع کے اندر تمام سرکاری اور غیر سرکاری افراد جو ہیں وہ یوم یکجہتی کشمیر کو ایک ایسے قومی دن کے طور پہ منائیں جس سے کشمیریوں کی جو جدوجہد تحریک آزادی ہے اس کو تقویت ملے، اور کشمیریوں کو ہم یہ پیغام دیں کہ کشمیری جو سینہ تان کے گولی کھا رہا ہے، پاکستان کا بچہ بچہ اس کشمیری کی پشت پہ کھڑا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا جو عزم ہے کہ ہم نے آخری خون کے قطرے تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، اور چونکہ وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان مظلوم کشمیریوں کے وکیل اور ترجمان بن کے دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو آسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کشمیریوں کا بہنے والا خون جو ہے وہ رنگ لائے گا، اور جلد آزادی کی صبح طلوع ہوگی اور پاکستان اپنی سفارتی اور اخلاقی اور قانونی حمایت جاری رکھے گا۔ آج چونکہ جہاں ہم نے کشمیریوں کے اس جذبے کو سلام پیش کرنا ہے اور ان کی اس انتھک جو جدوجہد ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر کے اندر جو بسنے والا کشمیری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیر کے اندر آپ جو آپ کے آباء و اجداد اور عزیز و اقارب اور خاندان کے دیگر افراد مقبوضہ جموں کشمیر میں جو جدوجہد کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر بسنے والا ہمارا وہ کشمیری جو ہے اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح جس طرح پورے پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانی اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے گرویدہ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہم پوری قوم جو ہے ان کی اس کاز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ آج چونکہ انتہائی اہم ایشو جو ہمارا سپریم کورٹ کے اندر ایک زیر سماعت کیس جو پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن کرانے کے حوالے سے ہے، میں اس پہ بھی چونکہ مجھے انڈیویجولی آپ پوچھ رہے تھے تو میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی ہم تفصیلی بات کریں۔ ایک تو الیکشن کمیشن آج جو شیڈیول وہاں لے کے گئے سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے فرسٹ ویک آف جون پرپوز کی بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے پنجاب میں۔ حکومت پنجاب نے
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे उस एप्लीकेशन के साथ जो अपना एक कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद रिक्वेस्ट और प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन को पेश किया है, उसमें हमारी तरफ से ये प्रपोज़ल यही है कि 12 अप्रैल जो प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन अनाउंस करना चाहता है, यानी 12 अप्रैल को वो बल्दियाती इलेक्शन का प्रॉपर प्रोग्राम अनाउंस करके फर्स्ट वीक ऑफ जून को वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और हुकूमत पंजाब जो है वो 22 जो अगस्त है उस दिन चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो और उसको 3 फेजेस में कराया जाए। 9 डिवीज़न हमारे जो हैं वो 3 फेजेस में मीन के एक एक फेज़ जो है वो 3-3 डिवीज़न पे मुश्तमिल हो और बियक वक्त जो है वो हर महीने ये प्रोसेस जो है वो हो और 3-3 डिवीज़न करके, ताकि एक तो फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसके अमल को यकीनी बनाया जाए और दूसरा जो है वो 3 डिवीज़न्स में जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो पंजाब के जो बाकी डिवीज़न्स होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे और जो फेज़ वाइज कहीं पे हमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश हो तो उसको हम और इफ़ेक्टिवली मीडिया के साथ मिल के इंश्योर कर सकते हैं। जो अमेंडमेंट्स हमने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में इसमें जो की हैं उसके अंदर जो है वो यकीनन वो आप तक पहुंच भी जाएंगी। तो उसके मुताबिक जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस जो हैं उनको हुकूमत 9 डिविजनल उसको बहाल करने जा रही है, यानी एक नया निज़ाम जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस का उसको इंश्योर करने जा रही है और 27 डिस्ट्रिक्ट्स में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं उनको इफेक्टिव करने जा रही है, यानी ज़िलाई हुकूमतों की बजाय वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होंगी। टाउन काउंसल्स का दायरा कार जो है वो मुतारफ़ कराया जा रहा है जो हमारी डिविजनल लेवल पे बनेंगी। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटीज़ हम उन अमेंडमेंट्स के तहत मुतारफ़ करा रहे हैं जो 75,000 से ले के 2.5 लाख तक की आबादी पे म्यूनसिपल कमेटी बनेगी। फिर टाउन कमेटी है जो 50,000 से ले के 75,000 तक की आबादी पे बनेगी और रूरल एरियाज़ के अंदर जो है वो तहसील काउंसिल, विलेज काउंसिल और यूनियन काउंसिल्स इनका जो है वो एक स्ट्रक्चर मुतारफ़ कराया जा रहा है। और जो नेबरहुड काउंसिल्स हैं चूँकि शहरों में आपकी नेबरहुड काउंसिल्स हैं और जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका जो है ये विलेज काउंसिल्स हैं और इनके साथ जुड़ा देहात के अंदर विलेज पंचायत सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हर गांव में जो कि पंजाब के तकरीबन विलेज पंचायत काउंसिल्स और ये 5 रुकनी विलेज पंचायत काउंसिल बनने जा रही है जिसको ये हुकूमत इख्तियार देने जा रही है कि उस देहात की चौकीदारी ले के सफाई, सीवरेज और हुकूमती अहलकार जो भी उस गांव के आवाम की जिस सरकारी दफ्तर के साथ कोई रोज़मर्रा के अमूर हैं उसकी अंजामदही में वो सहूलत कारी करे और जो पंचायती निज़ाम है छोटे लड़ाई झगड़े एक दूसरे के गिले शिकवे और ताकि हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं उन पे प्रेशर कम हो और देहात की सतह पे ही ये हमारी जो विलेज पंचायतें हैं ये उसको इंश्योर करें। इसके अलावा वुमेन, माइनॉरिटीज़, यूथ, फार्मर और लेबरर की जो सीटें हैं उनको भी उसमें यकीनी बनाया जाएगा और ये सारा प्रोसेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये जो निज़ाम को बदलने का एक वादा था और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने
उस वादे की तकमील की तरफ इंतहाई अहम कदम उठा लिया है कि डायरेक्ट वोट के ज़रिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा और आप सब एट ए टाइम काउंसलर से लेके ऊपर तक, यानी वो फेजेस में जो इलेक्शन हो रहा होगा जिस डिवीजन में, तो डायरेक्ट वोट लेना होगा। और ये इख्तियार और इस्तेहकाक आपको दे दिया गया है उस सूबे के, उस ज़िले के और उस गांव के रहने वाले को कि वो फैसला करे कि उसने किस लीडरशिप को चुनना है। और डायरेक्ट इलेक्शन से हकीकी तब्दीली जो है उसको हुकूमत इंश्योर करेगी। ये हमारी प्रपोजल्स हैं जिसमें हम इलेक्शन कमीशन को ये यकीन दिलाएंगे कि इंशाल्लाह हम म्यूचुअल कंसल्टेशन से एक हतमी जो है वो अपना लाए अमल आपके सामने लेंगे। लेकिन चूंकि ये इंतहाई अहम केस आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, तो जहां हुकूमत पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अमेंडमेंट्स करके आज जो वहाँ प्रपोजल सबमिट की है, मैंने वो आपसे शेयर की है। डॉक्टर साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि इसका मतलब है कि अभी बलदियाती इंतखाबात की तारीख हतमी पहले मरहले की तय नहीं हुई, अभी जस्ट तजावीज़ हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने वो डेट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है और उन्होंने जो डेट सबमिट की है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून की है और हुकूमत पंजाब ने उन अपने तहफ़्फ़ुज़ात उसमें शो किए हैं और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पंजाब मिल बैठ के हम उनको अल्टरनेटिव डेट जो है वो 22 अगस्त प्रपोज कर रहे हैं ताकि और हम ये कह रहे हैं कि उसको यकमुश्त 3-3 डिवीज़न में किया जाए। 9 डिवीज़न पंजाब के हैं तो वो 3 फेजेस में कर लिया जाए ताकि जून के अंदर, चूँकि शदीद गर्मी का मौसम होगा, तो ओवरऑल मतलब आप सब जानते हैं कि जब निचली सतह तक आप डायरेक्ट वोट का हक दे रहे हैं तो फिर आपको उस गर्मी के मौसम में, फिर आगे बारिशों का मौसम है, फिर तो अगस्त एक सेफ डेट है। डिपेंड्स के इलेक्शन कमीशन इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि लगभग जो प्रपोजल्स हैं जो पंजाब हुकूमत की, ये उसी सिस्टम पर वापस जा रही है जो शरद साहब का सिस्टम था। क्या इसके अंदर जो आप इस वक्त आपको जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है वो ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन है आपके साथ, आपकी गवर्नमेंट उस तरह फ्रूटफुल अपना काम नहीं कर रही। इस वक्त डीएमजी और ब्यूरोक्रेसी को काबू करने के लिए और पीएसपी को काबू करने के लिए कि वो इलेक्टेड लोगों के नीचे हो, इसमें क्या आपने प्रपोज किया है कि ये जिले के लेवल के इलेक्टेड लोग और डिवीजन के लेवल के इलेक्टेड लोग अपनी डिवीजन में पीएसपी और डीएमजी को किस तरीके से चलाएंगे वो अपनी गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो? देखिए, जो आपकी हकीकी जमहूरियत का ख्वाब है वो जब तक आप मासिस को, निचले सतह पे मौजूद क़यादत को और निचली सतह पे मौजूद हमारी जो नर्सरीज़ हैं वो लीडरशिप जो कमिटेड है, डिवोटेड है और डेडिकेटेड है, उनको जब तक आप अंगेज नहीं करते, बाख्तियार नहीं बनाते, हकीकी तब्दीली का वो ख्वाब अधूरा रहता है। उसके अंदर आपकी जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उस वक्त तक यकीनी नहीं बनाई जा सकती जब तक फिनंशियल एम्पावरमेंट ना हो, जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ना हो, जब तक उनके पास ये इख्तियार ना हो कि वो उस कॉरपोरेशन में बैठे, मेट्रोपॉलिटन अपनी उस काउंसिल के अंदर बैठे, कमेटी के अंदर बैठे, खुद से फैसले ना करें। तो जिनका हक है उनको इख्तियार भी दिया जा रहा है। जिम्मेदारी के साथ इख्तियार दोनों का यकजा होना ही जमहूरियत है। ये नहीं है कि इख्तियार किसी के पास और जिम्मेदारी किसी के पास। तो ये एक हकीकी जमहूरियत के सफ़र की तरफ अहम संग मील है। जहाँ तक आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो जो जमहूरियत के पैरामीटर्स हैं उसमें जमहूरियत की गाड़ी जो है जब तक आपकी सिविल और एग्जेक्टिव, पॉलिटिकल एंड एग्जेक्टिव्स इकट्ठे नहीं होते, जमहूरियत की गाड़ी
चल ही नहीं सकती। तो लिहाजा गाड़ी के दोनों पहियों में यकसा हवा होना जरूरी है ताकि गाड़ी स्मूथली चले। बारी बारी कर लें, बारी बारी कर लें बेटे। इंतखाबी इस्लाहात ज्यादा जरूरी है, जो अपोजिशन भी कहती है। जो अगर इसी निजाम के तहत इलेक्शन हुए तो सब सरमायादार, जागीरदार, कब्जा ग्रुप दौलत के बलबूते पे इलेक्शन जीत के फिर आ जाएंगे। आप पहले इंतखाबी इस्लाहात का। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये रिफॉर्म्स कहते किसको हैं? रिफॉर्म्स कहते हैं कि थ्रू लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स होती हैं, और ये लेजिस्लेशन ही तो है कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स करके आपने तो एक वे फॉरवर्ड रोड मैप आप सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गए हैं। अपोजिशन का जो आप दर्द बयान कर रहे हैं तो वो तो बेनकाब हो गए हैं। उनके मकरू चेहरे जो हैं वो आवाम ने देख लिए हैं कि उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी का कि शफाफियत होनी चाहिए। तो शफाफियत जो है वो कहाँ से होनी है, कहाँ से उसने ताकत लेनी है? उस पार्लियामेंट से, उस सेनेट से। तो जहाँ पे जिन्होंने आवाम को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस को यकीनी बनाना है, जब उनका चुनाव जो है वो शफाफाना नहीं होगा और उनका चुनाव जो है वो बकरा मंडी के जरिए होगा और बोलियां लाग के होगा, तो वो कौन से आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं? उन्होंने खुद ही अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारी है और जमहूरियत के इस दरख्त को उन्होंने उसकी जड़ों में तेजाब फेंका है कि वो ये चाहते हैं कि मालदार जो है वो चोर दरवाजे से लोगों के ज़मीरों के सौदे करें और उनको पार्लियामेंट तक रसाई हो, सेनेट तक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, पीटीआई ने शो ऑफ हैंड जो है, हर जमात की ताकत है, चोर दरवाजे उससे बंद हो जाते हैं। तो आप तो खुद ही अपने सवाल की नफी कर रहे हैं, लेकिन हमने ये यकीनी बनाना है कि शफाफियत भी हो, रूल ऑफ लॉ भी हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी इंश्योर हों, पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी हो और ये जितने सियासी ठग हैं इनकी दुकानदारी भी बंद हो। जी, कि जो भारतीय जेलों में बंद कश्मीरियों के हवाले से तो हुकूमत बड़ा शोर करती है, एहतजाज भी करती है, लेकिन एक हमारे कोटला के पास जेल के अंदर भी एक कैंसर मरीज बेचारा बंद हुआ है, आदमी आ रहा है साथ साथ, उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो दुहाइयाँ, वो हुकूमत को क्यों नहीं आवाज़ आ रही, नैब को आवाज़ नहीं उसकी आ रही, जबकि अभी तक एक जो वो ढीला जो है वो भी हुकूमत उसे रिकवर नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है कि धेला और पाई जो है, जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो उस वक्त ये इकाई जो थी ख़त्म हो गई, और ये उस वक्त, और ये बड़े समझदार लोग हैं, वो अल्लाह के कटहरे में भी खड़े होके और अवाम के कटहरे में भी खड़े होके तो अंदर अपने ज़मीर की मलामत सुन रहे होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ना पाई रही है तो ना धेला रहा है, तो असी अल्लाह ने कहिए कि वाकई ठीक है। क्योंकि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उनके मरीज़ होने की, देखें वो कैंसर का कोई मरीज़ हो, कोई किसी भी जिस्मानी बीमारी का और मजूरी का शिकार हो, उसको बेहतरीन उसके लिए शफा जो है वो डॉक्टर है, और डॉक्टर के पास आज उनको शफा के लिए लाया गया था। तो डॉक्टर ने उस मरीज़ मुकारी और अयारी को भांपते हुए उन्हें वापस भेजा है, क्योंकि डॉक्टर के अलावा आपका जो है वो और कोई तशखीस नहीं कर सकता। तो इन जाली मरीज़ों के लिए जो डॉक्टर है वो इमरान खान है, और इमरान खान ही इस करप्शन के कैंसर का ना सिर्फ इलाज करेगा बल्कि पूरी कौम को करप्शन ज़दा करके पूरे मुआशरे को जिस तरह इन्होंने बीमार किया, लागर किया, और इस मुल्क को जो है वो वेंटिलेटर पर डाला और ख़ुद जो है वो महलों में जाके आबाद हुए, तो इंशाल्लाह हर वो कैंसर का मरीज़ हो, करप्शन का मरीज़ हो, और जहाँ जहाँ भी दर्द, दुख, तकलीफ़ और मर्ज़ के साथ जुड़ा कोई भी बयानिया होगा, इमरान खान इज़ अ गुड सर्जन, और वो जब सर्जरी कर रहा है तो दर्द हो रही है और उस दर्द की चीखें भी आपको सुनाई देंगी। ये बताइएगा कि जैसे नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना था जब आप
लोगों ने, तो माहौल क्रिएट हुआ था एक। अब शहबाज शरीफ की बारी भी, मेडिकल बोर्ड बना, उनका तबी चेकअप स्टार्ट हो गए, तो माहौल बनना शुरू हो गया। देखिए, माहौल जो है वो आपको पता है कि जिस वक्त वो इधर थे, मैं फेडरल में थी, तो वो यहाँ लाए गए, तो जिस वक्त रात 1 बजे उन पे पत्तियां और फूल निछावर हो रहे थे, तो मैं आपको भी नहीं पता था, एक मरीज को एकदम से जब तकलीफ हुई है, तो जिनको पता था कि वो आ रहे हैं तो तकलीफ होने लगी है, तो फौरी तौर पे उन्होंने फूल भी मंगवा लिए और कारकुन भी इकट्ठे कर लिए, सड़क पर टायर भी जला लिए। तो ये एक ऐसा माफिया है कि जिसकी जड़ें जो हैं वो इतनी गहरी मजबूत हैं कि हर शोबे के अंदर इनका कोई ना कोई हवारी दरबारी बैठा हुआ है जो इनको रिलीफ देता रहता है। लेकिन हमेशा इन्होंने गुज़श्ता 35 साल में हर किसी की आंखों में मिर्चें डाली हैं और हमेशा कानून को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने लिए, और ये उसका रिलीफ लेके फ़ायदा लेके वो आप शुरू करें जरदारी से, आप शुरू करें मुशर्रफ से, आप शुरू करें बेनज़ीर से, आप शुरू करें आगे, तो ये कहीं ना कहीं ये उस्ताद तो हैं और इनके पास कोई ना कोई अपने रेस्क्यू रिलीफ के लिए पुड़ी ये जेब में रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो मुआलिज जो था वो उसकी गहरी नज़र है, इमरान खान साहब की इन सारे इश्यूज़ पे गहरी नज़र है, और हमें यकीन है कि अब इनके इलाज के लिए स्वाय पाकिस्तान के कहीं और इनका मदावा नहीं होगा। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बताइएगा कि पीडीएम कहती है कि नून लीग और पार्टी मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है किस किस ने तिजोरियों के मुंह रखे हैं और इस वक्त जो खरीदो फरोख्त की मंडियां लगने जा रही हैं, हुकूमत की तैयारी है ऐसी मंडियों को रोकने की या कोर्ट ऑर्डर का ही वेट है? देखें, रात की तारीकी में आपने देखा कि मौलाना साहब और जाली राजकुमारी जो है उन्होंने सर जोड़ के जो एक दूसरे को तिफल और तसल्लियाँ दी और एक दूसरे के आंसू पहुँचे, और अभी फिर वो बैठक लगने जा रही है जिसमें आप देखेंगे कि ये लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, ये इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बारगेनिंग की बात कर रहे हैं। अवाम के सामने ये दो राग लापते हैं, आपस में ये बारगेनिंग की बात करते हैं। तो अभी इनकी बैठक के बाद आप वो हिकमत अमली सुनेंगे जिसमें अवाम के लिए कुछ नहीं होगा और जिसमें एक दूसरे पे अदम एतमाद होगा। हुकूमत पे अदम एतमाद अब किधर चला गया, अब वो सफ़ाई फट गया, अब में वो राह ही नहीं है इनकी तरजीहात में कि अदम एतमाद हुकूमत पे करना है या एक दूसरे पे करना है। जो आप बात कर रहे हैं कि तिजोरियों के मुंह खोल रहे हैं, तो तिजोरियां तो पीछे रह गई, इन्होंने बोरियों के मुंह खोले हैं, और बोरियों के मुंह खोल के ये जो सेनेट के इलेक्शन में ज़मीर फरोशी का धंधा करने जा रहे हैं। हम ना सिर्फ गहरी नज़र रखे हुए हैं बल्कि हमें यकीन है कि जो इनका शो ऑफ हैंड के ज़रिए उस तरमीम की सपोर्ट ना करना साबित करता है कि दाल में कुछ काला है, और उसके लिए उस दाल को साफ करने के लिए हम पुरज़म हैं। डॉक्टर भाई, अभी आपने बात की कि अपोजिशन के पास जरदारी और शबाशी के पास कोई पूरी ऐसी चीज़ है जिससे रिलीफ मिल जाता है, गिदड़ सिंह आप बताइएगा कि आपके पास वो कौन सा दिन का चिराग है कि आप इदारों में जाएं, आपके अरकान जाएं, उनको डेट नहीं मिल जाती है, अपोजिशन है वो भी नई डेट दे देती है आपको, आपके पास वो कौन सा दिन का चिराग है जो आप इनको देती है, आपको डेट मिल जाती है? हर हुकूमत जो है वो देखें, इस वक्त जो आप पहले तो अपोजिशन का सुन लें कि वो गिदड़ सिंह पूछ रहे हैं आपके वो कौन सी है, तो वो गिदड़ सिंह जो है वो उनसे बेहतर है कि आए हुए थे सारे के सारे लाइन में, उनसे आप पूछते। ख्वाजा साहब भी आज रूनमा हुए थे तो उनसे पूछते, और वो गिदड़ सिंह मैंने बताई तो वो थोड़ा मसला बन जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हुकूमतें आइन और कानून के तहत चलती हैं,
किसी की ख्वाहिशात के ताबे नहीं चलती। आइन और कानून की सुपरमेसी के ज़रिए हमने जब भी बात की, अदालतों में गए तो आइन के कस्टोडियन बन के गए और अदालतों ने हमारी उस आइनी और कानूनी मौक़िफ़ को सुना भी और उसकी पासदारी भी की। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि ख़ास तौर पे पीडीएम ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, उनके कुछ अरकान भी राब्ते के साथ हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। ये बताइएगा कि क्या आप उन लोगों से वोट मांगेंगे, ख़ास तौर पे नून के जो बागी अरकान हैं और पीपल्स पार्टी का एक है, और उनके वोट कबूल भी करेंगे सेनेट इलेक्शन में? देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो अंजुमन मुतासरीन PMLN है, वो अंजुमन मुतासरीन जो है वो इस वक्त जो है वो जिस तरह से यारो मददगार बन के फिर रही है और परेशान है कि हमें सियासी जो उनका मुस्तकबिल है वो तारीक है और वो रोशनी की तलाश में है, तो उसमें से हमारे कुछ ऐसे अरकान जो समझते हैं कि PMLN की नाव जो है वो डूब रही है और जाली राजकुमारी ने कश्ती का जो चप्पू मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में थमाया हुआ है, वो अपने ही वज़न के तहत वो कश्ती बीच मंझदार के हचकोले खाती हुई डूबने जा रही है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ये जो डूब रहे हैं उस कश्ती से जो छलांगे लगा रहे हैं और जो जब डूबते हुए को किसी को पुकारता है तो उसकी आवाज़ को सुनना, उसकी जान को बचाना इंसानी जिम्मेदारी है। तो जो नून लीग की कश्ती से छलांगे लगा के डूबते हुए हमें आवाज़ें देंगे तो हम उनको बचाएंगे भी, सीने से भी लगाएंगे। जिस कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठे हुए हैं, इधर भी तस्वीर है, इधर भी तस्वीर है, ये जो हमारे राइट हैंड पे है ये फीचर अच्छे लग रहे हैं, इनका सलूक भी अच्छा है। ये तस्वीरों में आप नज़र आ रही हैं PM और CM के साथ। कोई ऐसा होगा, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरफ PM हो एक तरफ CM, और आप ये कि पहले ओवर टू CM और फिर कि ओवर टू PM, क्या कहेंगे? मेरे भाई मोहसिन की जितनी मासूमाना ख्वाहिशें हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि उसकी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले उसकी अरमान, मगर फिर भी कम निकले। बारी बारी बेटे कज़ाफ़ी साहब। नून लीग की डूबती हुई कश्ती में से जो लोग बचना चाहते हैं, क्या सेनेट इंतखाबात में भी आपको बचाएंगे, साथ में? देखिए, हम तो चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड होगा तो हर रुकन जो है वो अपनी जमात के डिसिप्लिन का पाबंद होगा और हम किसी तरह भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कोई अरकान करता है तो हम उसको स्पोर्ट इलेक्शन के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि शो ऑफ हैंड आपके सामने है और आपका इलेक्शन का रूल है और किसी भी जमात के लिए तय फार्मूला है कि अगर वो अपनी लॉयल्टी चेंज करता है और अपनी जमात के मुखालिफ वोट देता है तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स और कमिटमेंट्स हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो वायलेट हो। लेकिन अपोजिशन जो है अगर हमारा साथ नहीं देती और वो अमेंडमेंट्स मिल के पास नहीं करती तो फिर अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि वो खुद जो है वो मंडियां लगाना चाह रहे हैं, वो खुद जो है वो ख़रीदो फरोख्त के लिए एनवायरनमेंट पैदा करना चाह रहे हैं जिसकी हम हौसला अफजाई नहीं करते। अवामी नुमाइंदे अगर अवामी इशू पे वज़ीर आला से मिलें या वज़ीर आज़म से मिलें तो ये उनका हक है, लेकिन वोट देने के लिए जो कानूनी तरीक़ाकार है उसकी पासदारी करनी है। और अगर कोई सरेआम उसकी वायलेशन करता है तो जाहिर है उसका सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान हुकूमत को होता है, लेकिन हुकूमत अपना आइन और कानून की पासदारी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हर तरह का स्टैंड लेने के लिए तैयार है। लेकिन अपोजिशन को पता है कि उनकी अपनी सफ़ों में जो उनके सताए हुए मुतासरीन हैं उनको उसका नुकसान होगा, इसलिए वो चोर दरवाजे से मंडियां लगा रहे हैं तो जिसमें उनको शर्मिंदगी होगी। लास्ट
जो वहाँ SDPO है उनको हटाने का मुतालबा किया गया है इलेक्शन कमीशन ने कि वो असरअंदाज हो रहे हैं, वो किसके असरअंदाज हो रहे थे? आपकी जमात की तरफ से? SDPO कौन है? SDPO जुल्फिकार विर्क को हटाने का अच्छा, वो DSP है बेटे, DSP है ना। इलेक्शन कमीशन ने अभी इस जारी किया है हैंडआउट, उसमें उन्होंने देखिए, इलेक्शन कमीशन किसी भी हल्के के अंदर आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन कराने के लिए ये उसकी आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन कोई भी हुकूमत को रिकमेंडेशन देगा तो ज़ाहिर है हुकूमत पाबंद है उनकी उस राह का एहतराम करने की, लेकिन साथ ही अपना नुक्ता नज़र देना, हक़ाइक़ पर मबनी अपडेट देना और इलेक्शन कमीशन को कानून के साथ जुड़ा जितना भी हुकूमती मौक़िफ़ है वो पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस्तेहक़ाक़ है कि वो हमारे उस आवाज़ को सुने या ना सुने। लास्ट फंड देने की बात की जा रही है, पहले माजी में प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि ये तो करप्शन की वजह बनती है, तो अब वो खुद देने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर बता दें कि आप क्या कहेंगे? और दूसरा अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये एक सियासी रिश्वत दी जा रही है। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म का ये अज़्म है कि हमने जितने निचली सतह पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको हर हाल में एम्पावर करना है और इख्तियार देना है, और बल्दियाती निज़ाम ही उसका वाहिद और अहम हल है और उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब तक ये इदारे पेश नहीं होते जो और अपना काम शुरू नहीं करते, लोगों के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, कोई ड्रेनेज का है, कोई सीवरेज का है, कोई सड़कों का है, कोई नालियों गलियों का है, कोई बिजली है, कोई गैस है, तो उसको आवाम तक पहुंचाने का जो मैकेनिज़्म है वो अवामी नुमाइंदे MP MNAs हैं। उनको आपने अप टिल द टाइम वो पूरा स्ट्रक्चर प्लेस नहीं हो जाता, आपकी मजबूरी है कि आप उनको साथ लेके चलें और वो फंड्स दें। और वो फंड्स उनको नहीं मिल रहे होते, वो फंड्स है वो स्कीमों को मिल रहे होते हैं, वो MP MNA के कोई ज़ाती अकाउंट में या पर्सनल डिस्क्रिशन पे नहीं जाते। MNA MPA स्कीमें आइडेंटिफाई करता है जिसको महकमे एवेलुएट करते हैं, फिर उसकी फिजिबिलिटी बनती है, फिर वो मुतलका महकमा जो है स्कीमों को फंड रिलीज करता है। वो MP MNA को फंड नहीं रिलीज कर रहा होता, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन पे वो स्कीमें बनती हैं जो अवाम की फलाह महबूद की मंसूबे होते हैं, उसकी ज़ात के साथ उसका कोई नैरेटिव नहीं जुड़ा होता। इस परसेप्शन को भी खत्म होना चाहिए। थैंक यू बेटे। लास्ट माहौल आपका जो है वो कंसल्टेशन है, माहौल आपका एंगेजमेंट है, माहौल आपका जो है वो एक दूसरे के साथ मिल बैठ के अवामी ज़रूरियात के साथ जुड़ा हक़ाइक़ पे मबनी निचली सतह की आवाज़ होती है जो सुन के आप आगे जो है वो बढ़ते हैं। और वो पाकिस्तान का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर करार दिया गया है, आपने उसका इफ्तिताह भी किया। लाहौर का सिटी ऑफ लिटरेचर बनने के पीछे सदियों का अमल है, बड़ी अच्छी बात है। कल वहाँ पे 13 तस्वीर इश्तिहार में भी लगी हैं और पीछे जो पैनाफ्लेक्स था उस पर भी लगी हुई थी। 13 के 13 उर्दू लिखने वाले थे, जबकि लाहौर में सदियों से पंजाबी लिखने वाले थे, शाह हुसैन जैसे बुजुर्ग भी थे। आया कि जानबूझ के इनको नजरअंदाज किया गया है या किसी शरारत है, ये साजिश है? कोई ना साजिश है ना शरारत है। ये चूँकि आपको पता है कि लाहौर के जो हमारे हीरोज़ हैं, जो अदब से जुड़े हैं, जो कल्चर से जुड़े हैं, जो फ़न से जुड़े हैं, वो सारे जो हमारी रवायात और सकाफत से जुड़े जो चेहरे और हीरोज़ हैं, उनको आप किसी एक इश्तिहार में नहीं, उनके लिए किताबें प्रिंट करनी पड़ेंगी। तो चूँकि हुकूमती जो तरजीहात होती हैं उसमें कोई पिक एंड चूज़ नहीं होता, उसमें ये देखा जाता है कि आप उसको किस तरह रिपीट कर लें, और वो रेपिटिशन में वो तमाम हीरोज़ जो हैं अल्टीमेटली हम उनको आपके सामने भी लाएंगे और उनकी खिदमात को हम सराहते हैं।
लेकिन चूंकि ये इश्तिहार होता है और उसमें लिमिटेड आपने एक रखना होता है, लेकिन पंजाब हम पंजाबी हैं और पंजाब को इंश्योर करेंगे।